السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کے۔ معزز دوستو، آج 16 مارچ 2022 بروز بدھ ہے، اور یہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہمارا سالانہ بلکہ 13واں سالانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ رب کریم کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں ابھی ایک بات اسی راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 13واں سالانہ خانقاہی اجتماع ہے، اور رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری حاضری بھی ان 13 میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے شیخ و مرشد کا سایہ ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے، اور تادم زیست رب کریم ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے۔ میرے دوستو، اسٹیج پر جملہ علماء کرام، خلفائے متکلم اسلام، اور خصوصاً استاذ محترم حضرت مولانا عبدالجبار چکیروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں نے اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیت اور حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ میرا عنوان ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ میں اسی کے مطابق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ توجہ رکھیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیے اور دیکھیے، تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دین اسلام کا لکھ کر پہنچانے والا مانتے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب دین ہم تک پہنچا ہے تو ان 4 طرح سے ہو کر پہنچا ہے۔ نمبر 1 تنزیل، نمبر 2 تکمیل، نمبر 3 تمکین، نمبر 4 تدوین۔ ان چاروں کا مطلب، تنزیل دین کا معنی ہے دین اسلام کو آسمان سے زمین پر نازل کرنا۔ تکمیل دین کا معنی ہے کہ اس دین کو کسی ایک شخصیت کے اوپر آ کر مکمل کر دینا۔ تمکین دین کا معنی ہے کہ جو دین اتارا گیا، مکمل کیا گیا، اسے مضبوط کرانے کے لیے افراد کو استعمال کرنا۔ اور تدوین دین کا معنی ہے جو دین نازل ہوا، مکمل ہوا، مضبوط ہوا، اب اس کو لکھوا کر امت کے حوالے کر دیا جائے۔ تو آپ کو اور ہمارا خوش قسمتی کی تعلق ہے کہ تنزیل دین میرے اللہ نے کی ہے، تکمیل دین رسول اللہ پہ ہوئی ہے، تمکین دین حضور پاک کی جماعت نے کی ہے، اور تدوین دین حضور کے جماعت کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ اس کو نازل کرنے والے ہیں۔
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम में तकमील हुज़ूर पाक की ज़ात पर हुई है। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। तमकीन मजबूती पैगंबर की जमात ने की है। और वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम की निस्बत को लेकर जिस शख्स ने हुज़ूर पाक के बराह रास्त शागिर्दों से बराह रास्त पढ़ा है, उस अबू हनीफा ने लिखकर उम्मत को तफसील दी है। तो हम तंजील हो गया, तकमील हो गया, या तमकीन हो गया, या तदवीन हो गया, इन चारों रास्तों के कायल हैं। इमाम आजम अबू हनीफा दीन उतारने वाले नहीं हैं, वो अल्लाह की जात ने उतारा है। इमाम अबू हनीफा दीन की तकमील वाले नहीं हैं, वो रिसालत माब की जात पर हुआ है। इमाम आजम अबू हनीफा तमकीन सहाबा से बढ़ के क्या करेंगे, वो वादा तो पैगंबर के सहाबा से हो चुका है। हाँ, यही एक बात रहती है कि जो उतरा है, मुकम्मल हुआ है, मजबूत हुआ है, उसे लिखा जाए। तो इमाम सुयूती रहमहुल्लाह बताते हैं, अव्वलु मन दव्वन इल्म शरिया वरत्तबहु अबवाबन फहु अबू हनीफा रहमहुल्लाह सुम्मा तबिअहु मालिकुन फी तरतीबिल मुअत्ता, कि जिसने सबसे पहले दीन इस्लाम को फहरिस्त दर फहरिस्त, चैप्टर दर चैप्टर, चैप्टर वाइज अनावीन देकर उम्मत को समझाने के लिए लिख कर दिया है, उसका नाम इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम आजम रहमहुल्लाह कब आए, कब पैदा हुए, कब दुनिया से गए, ये बात सोचनी, समझनी, सुनानी, बतानी और आगे समझानी इतनी जरूरी है जितनी जरूरी इमाम साहब के तारुफ की बात भी नहीं है। पैदाइश का सन इतना जरूरी समझाना क्यों? आज मुआशरे में हक के मुकाबले में बातिल मुख्तलिफ शक्लों में आया है और मुख्तलिफ प्रोपागंडा, मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी और खाक उछाल के पगड़ियों को उछालने का तरीका नौजवानों के हाथ में देकर बेराह रवी की रविश पे डाल दिया गया है। वो लोग समझते इमाम अबू हनीफा शायद कोई साथ किसी एक करीबी चक के किसी इमाम का नाम है जो 10-15 साल पहले हुआ था। एक शख्स ने टेक्सला की सरजमीन पर मुझसे पूछा, मौलाना वजह क्या है? इमाम अबू हनीफा की बात करते हैं, हक तो था कि इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की बात मानते। इमाम बुखारी तो हदीस लिखने वाले हैं, उनकी किताब का नाम सही उल बुखारी है, तो फिर क्या जरूरत थी इमाम अबू हनीफा ने उसको छोड़ के उम्मत को फिक्र हनफी दी है? क्या हदीस पैगंबर की नहीं माननी चाहिए? इस तरह के सवालात जब मुझसे हुए, ये सिर्फ एक जगह नहीं कई जगह हुए हैं, मैंने सिर्फ पहली जगह का जिक्र किया है, तो मैंने बात सोची कि जब भी इमाम साहब पर बात हो, पहले इसके पैदाइश के आने के सन को बताओ ताकि लोगों के दिमाग में हो यह बंदा कब का है। मेरे दोस्तों सुनिए, दिल की तख्ती पे तावीज बना लीजिए, इमाम अबू हनीफा कब के बंदे हैं? आप जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ते हैं, रिवायात हदीस में है ला जुमात इल्ला बिखुतबतिन, खुतबा नहीं होगा, जुमा की नमाज अदा नहीं होगी। तो मिंबर पे खतीब अपने हाथ में असा लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस खुतबे में सुनाता है। रिसालत माब फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, कहे लोगों मैं तुम्हारा नबी, तुम उम्मत के 3 तबकों को दुआ दे रहा हो, दुआए खैर दे रहा हो, उनके हक में अच्छाई भलाई बात कर रहा हो। या रसूल अल्लाह वो 3 तबके कौन से हैं? फरमाया खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना जब तक मैं तुम में दुनिया के अंदर मौजूद हूं, मैंने अल्लाह से मनवा के इस जमाने को साहिब दुआ जमाना करार दिया है।
ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کا زمانہ میری دعائیں لینے والا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، صحابہ کے شاگرد تابعین میری دعائیں لینے والے لوگ ہیں. تو تین طبقات، تین زمانے اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق بنے. دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین. حضور پاک کے شاگرد کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں. ان تین زمانوں کو دعا میرے پاک پیغمبر نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ بولتے نہیں ہے. مجھے سب کا جواب چاہیے. کس نے دی ہے؟ پاک پیغمبر نے. کتنے زمانوں کو دی ہے؟ ہاتھ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو انگلی پہ مجھے جواب دے. کتنے زمانوں کو دی ہے؟ مجھے بتائیے کتنے زمانوں کو؟ تین زمانوں کو. ان میں پہلا زمانہ، صرف میں نے بات نہیں کرنی، میں نے آپ کے دماغ میں رٹوانا ہے. پہلا زمانہ حضور پاک کا، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ تابعین کا ہے. سنو، یہ تین زمانے شروع کب ہیں، ختم کب ہیں؟ حضور پاک کا زمانہ حضور پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پورا ہو جاتا ہے. حضور دنیا سے گئے ہیں، سن 11 ہجری ہے. کسر حذف کرے تو 10 ہجری. پیغمبر کا زمانہ سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری تک، جب تک پیغمبر کے آخری صحابی اس دھرتی پر موجود تھے. صحابہ کا زمانہ وہ 100 سال ہے. ابو امامہ باہلی ہوا سدی بن عجلان وہو مات من الشام بالصحابۃ الرسول علی وجہ الارض. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں پیغمبر کے صحابہ حضور پاک کے پردہ فرما جانے کے بعد 100 سال تک اس دھرتی پر موجود رہے. حضور گئے سن 11 ہجری، سن 10 سے شروع کرو 110 صحابہ کا زمانہ. پھر 100 سال پیغمبر کے شاگردوں کے شاگرد تابعین کا زمانہ 210 ہجری تک. اب آؤ امام ابو حنیفہ کے اوپر پیدائش کب ہے، کام کب کیا، وفات کب ہے، مشن و مسلک و مذہب و ایمان و دین کی اشاعت کس دنوں میں کی، جن سے پڑھے وہ کون تھے، جن کو پڑھایا وہ کون تھے، جسے لکھوا کر امت کو دیا وہ کیا تھا. میرے دوستو، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 3 روایات موجود ہیں. ایک روایت ہے کہ امام صاحب کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہے. اگر یہ زمانہ لے تو امام اعظم رحمہ اللہ 90 100 110 30 سال صحابہ کے زمانے کی سعادت حاصل کرتے. توجہ قائم رکھنا. دوسرا قول ہے سن 70 ہجری. اگر یہ قول لے تو 80 90 100 110 40 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کے زمانے میں گزارے. اور تیسرا قول لے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ والا سن 60 ہجری. تو 70 80 90 100 110 نصف صدی ابو حنیفہ نے صحابہ میں پل بڑھ کے گزاری ہے. یہ ہے امام ابو حنیفہ. اور جب دنیا سے گئے ہیں، اتفاق امت کا، مورخین کا، ماہرین تاریخ کا، ایکسپرٹ آف دا ہسٹری، تاریخ کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ سن 150 ہجری ہے. شعبان کی 4 ہے یا رجب کی 15 ہے سن 150 ہجری. 150 ہجری ابھی وہ والا زمانہ جاری تھا جس کو حضور کی تیسری دعا لگی ہے. ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس زمانے میں جس زمانے کو دوسرے نمبر پہ دعا ملی. ابو حنیفہ دنیا سے گئے اس زمانے میں جس زمانے کو تیسرے نمبر پہ دعا ملی. یہ امام ابو حنیفہ ہے. آؤ ذرا امام بخاری رحمہ اللہ پر پیدائش کب ہے، صحیح بخاری کب لکھی، وفات کب ہے، تو آپ تاریخ سے دیکھ لیجئے، سوانے آیات اٹھا لیجئے.
इनके इंट्रोडक्शन तारुफ पर किताबें देख लीजिए, आनेर में बात कर रहा हूं। इमाम बुखारी पैदा उस वक्त हुए जब 194 हिजरी चल रही है। गोया इमाम अबू हनीफा को दुनिया से गए निसफ सदी पूरे होने को है, आधी सदी गुजर रही है। 44 साल बाद इमाम बुखारी पैदा होते हैं और सन 217 में आकर 217 हिजरी में सही बुखारी की इब्तिदा करते हैं। जिस तीसरे जमाने को हुजूर ने दुआ दी थी उसको खत्म हुए 7 साल गुजर चुके थे। जब ये हिस्ट्री मैंने उन लड़कों को बताई ना कि इमाम बुखारी ऐसे और इमाम हनीफा ऐसे, टेक जाकर लगाई बच्चों ने, अच्छा इमाम अबू हनीफा इतने पहले के बंदे हैं। मैंने कहा तू क्या समझता है, 88 चाकदे इमाम ने अजी 7 वाली किसी मस्जिद नमाजा पढ़ा दे, अजी बच्चे नाजरे पढ़ा देवा। आए खुदा के बंदे, इमाम साहब के तारुफ पर आप इमाम साहब के मामलात पर आगे बताना सीखें। मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर हम यूं तारुफ नहीं कराएंगे तो हम कैसे बता पाएंगे। अब जरा अगली बात, इमाम अबू हनीफा को निस्बत सहाबा की कैसे हासिल है। उलमाए सियत ने लिखा है सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की क्लास में एक अहम शख्स है, कभी कभी फालूदा लेकर पेश होता है। इसका नाम जूती है, गैर मजहब से कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, नौ मुस्लिम है। फालूदा हजरत अली अल मुर्तजा को खिलाता है। एक दिन आया तो फालूदा भी है और हाथ में नवाइज़दा बच्चा, ताजा पैदाशुदा बच्चा भी है। उस्ताद जी मैं आपकी खिदमत में आया हूं दुआएं लेने। बेटा दुआएं तो तुझे हर वक्त मिलती हैं, आज कोई खास मौका का जी का रब ने मेरे घर में नेमत दी है, मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है, इस बेटे को आप पहली घुट्टी तो दे दें। हजरत अली अल मुर्तजा ने जबान दी है, उसे बरकत की दुआ की है, इल्म की दुआ देकर पूछा नाम क्या है। जूती कहने लगे मैंने नाम साबित रखा है। कहा अल्लाह इसे इसे की औलाद को बाबरकत बनाए, ले जाओ। सरगोदा खान का इज्तिमा में आने वाले गयूरो, ये साबित कोई और नहीं है जिसे सैयदना अली ने गोद में उठाया, इमाम हनीफा का अब्बा है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। इन दुआओं का नतीजा है। आपको नहीं पता हजरत रसूलुल्लाह ने सैयदना अली अल मुर्तजा का मकाम जो हुजूर ने खुद हजरत अली को टाइटल दिया है नाम में, वो क्या है? आप जुमा के खुतबे में सुनते रहते हैं, व अक़ज़ाहुम अली। सैयदना अली अल मुर्तजा इस उम्मत के चीफ जस्टिस हैं। अक़ज़ा सबसे बड़े काजी, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इसमें तफजील, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। इतने बड़े काजी, तो जिसको उसकी दुआ मिले वो उतना बड़ा इमाम बनता है। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सहाबा के जमाने में आधी सदी गुजारने वाला बंदा है। मुझे किसी एक सहाबी से दिखा दे जो कहे इसकी नमाज ठीक नहीं है, इसकी इबादत ठीक नहीं है, इसका मसला बताना ठीक नहीं है, इसका मामला ठीक नहीं है। अगर नहीं तो इसे ताईद सकूती नहीं कहते तो क्या कहते? मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद करने लगा हूं। इमाम आजम अबू हनीफा ने जिनसे पढ़ा है, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा कराम को तलाश करें तो बाकी असातिज़ा अपनी जगह, रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों को ढूंढे कि जिन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा को इल्म हदीस दिया, जो इल्म हदीस उन्होंने रसूलुल्लाह से लिया। आप इमाम मौफिक की मनाकिब उठा लें, आप इसी तरह मकानतुल इमाम अबी हनीफा फिल हदीस मुहद्दिस अब्दुल रशीद नौमानी रहमहुल्लाह की उठा लें, आप उक़ूदुल जम्मान इमाम अबू यूसुफ की उठा लें, आप यह तबयीज़ुस सहीफा इमाम सयूती की उठा लें, आप तनसीकुन निज़ाम मुल्ला हसन समली की उठा लें, या मुस्नदुल इमाम इमाम हस्कफी की उठा लें, या इमाम साहब रहमहुल्लाह पे बना के भी अबी हनीफा वसाइब ज़ाहबी की उठा लें रहमहुमुल्लाह। इन सब की करीम दे रहा हूँ, खुलासा दे रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा ने कई सहाबा को पढ़ा, कई सहाबा से पढ़ा, कई सहाबा कराम की ज़ियारत की है। आओ इमाम हस्कफी के दरबार में मुस्नद में एक बात फरमाते हैं मेरी उम्र 15 साल पूरी हुई। अबू ने कहा बेटा नौमान जी अब्बा जान हज पे चले। अबू जैसे आपका हुक्म। बाप ने उंगली पकड़ी, मुझे हज पे ले गए। फैजा नहनु बिमक्का, मक्का मुकरमा, मक्का मुअज़्ज़मा, मक्का मुशर्रफा, इतने बड़े अजीम शहर में हम हैं।
रजुलुन हौलहु रिजाल, एक शख्स मजमा लगा के बैठा है। मैंने अब्बू से पूछा मन हाजर रजुल व अय्यु शैउन इंदा, अब्बू है कौन, क्या चीज है इसके पास, मजमा जमा है। फरमाया हाजा रजुलन कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक का सहाबी है बेटा। व अहदीसुन कद समिअ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पास वो फरामीन पैगंबर हैं जो इसने अपने कानों से रसूलुल्लाह से सुने थे। मैंने अब्बू से कहा फदला मिन या अबी, अब्बा एक एहसान कर दो। क्या बेटा? कहा इतने मजमे को क्रॉस करना मेरा काम नहीं है, आप इन्हीं लोगों को कह के मेरा रास्ता तो बनवा दें। फजाल यफरुजु अनिन नास, अब्बू ने लोगों को हटाना शुरू किया, हटिए बच्चा है, जैसे हम कहते हैं बच्चा है यार थोड़ा कंसेशन मेहरबानी रियायत। लोगों ने रास्ता दिया। हत्ता दनौतु मिन, कहते मैंने उस सहाबी के करीब पहुंच के ब्रेक लगाई। राइतुहु व समिअतुहु रोयतन बिताबी और रिवायतन बिताबी। राइतुहु व समिअतुहु, मैंने उसकी ज़ियारत भी की है, उससे हदीस भी सुनी है। यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुज़ूर पाक का फरमान सुना रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों मन तफक्का फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आओ दो इनाम चाहते हो, ये वो दो इनाम है जो हर बंदा चाहता है, ये वो दो तोहफे हैं जो हर शख्स की मांग है, ये वो दो गिफ्ट हैं जो हर शख्स की नीड और जरूरत है। वो क्या? फरमाया चाहिए दो तोहफे, तुम चाहते हो कफाहुल्लाहु हम्मा, टेंशन फ्री लाइफ गुजारो। गम नहीं होगा तो टेंशन फ्री लाइफ होगी ना, गमों से हट के जिंदगी गुजारो, पुरसुकून जिंदगी। और चाहते हो वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, तुम्हें इतनी ज्यादा तग्गुदों पर उम्मीदें भी न लगानी पड़े और अल्लाह रिज्क तुम्हारे दर पे पहुंचा दे। कौन नहीं चाहता मेरी लाइफ भी पुरअमन हो, टेंशन फ्री हो, कफाहुल्लाहु हम्मा, और मेरा रिज्क भी मेरे दर पे पहुंचे? कहा जी चाहिए। फरमाया मन तफक्का फी दीनिल्लाह, दीन और इल्म शरीयत में इल्म फिक़्ह हासिल करके माहिर बनना तुम्हारा काम, पुरसुकून जिंदगी और तेरे दर पे रिज्क पहुंचाना अल्लाह का काम है। उम्मत को यह हदीस इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली। इमाम आज़म अबू हनीफा के एक उस्ताद पैगंबर के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी, ये है इमाम साहब के एक उस्ताद हजरत अनस इब्न मालिक पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब के उस्ताद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब के उस्ताद हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब के उस्ताद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब के उस्ताद हजरत वासिल इब्न अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब के उस्ताद हजरत बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब रहमहुल्लाह के उस्ताद हजरत सुदै इब्न अजलान अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी, इमाम साहब की उस्ताजा हजरत आयशा बिनते अजरद रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर की सहाबिया। इतनी बड़ी सर्टिफिकेट लेके इमाम अबू हनीफा है, इतनी बड़ी सनद लेके ये मुस्नदुल आलम बन रहा है। तमाम कायनात के उलमा, फुक़हा, औलिया, अत्किया, असफिया, तमाम के तमाम बुजुर्गों की सनदात अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल के रास्ते से हुजूर तक जाती हैं, और ये इमाम अबू हनीफा के मामलात से होकर वहां पहुंचते हैं। आपने हजरत उस्ताद मोहतरम का एक जुमला कई बार सुना होगा कि मुझसे किसी ने कहा आप इमाम अबू हनीफा को क्यों मानते हैं? तो फरमाते हैं मैं कहता हूं मैं आशिक मदीना हूं। का क्या मतलब? का एक आशिक को कहो फला 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 एयरपोर्ट्स पर जहाज रुक रुक कर जाएगा, मदीना जाना है, वो कहेगा कोई और टाइम भी है, हाँ हाँ डायरेक्ट फ्लाइट भी है, वो कहेगा उसी पे जाओ। कहा मैं किसी और को लूं तो वो किसका शागिर्द, पता नहीं किसका, फिर किसका, फिर किसका। कहा मैं इमाम हनीफा को लेता हूं जो शागिर्द पैगंबर के सहाबा का है और पैगंबर के सहाबा पैगंबर के शागिर्द है। तो मेरे दोस्तों ये है इमाम अबू हनीफा जो इस तरह पढ़ के आए और फिर उम्मत को पढ़ा के दिया। कैसे?
मर्दम शनास आदमी इमाम अबू हनीफा है। किसी एक शख्स पे नजर पड़ जाए, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, पैगंबर का फरमान है कि मुमिन अल्लाह के नूर से देखता है। और इमाम साहब वैसे ही देखते थे, उस बंदे में छुपी हुई सलाहियतें अपने एक्सपीरियंस और तजर्बा इल्मी की बुनियाद पर इन पे ज़ाहिर हो जाती। इमाम साहब के पास मेहमान आते हैं, तवज्जो, मैं सीरत साहिबैन से एक जुमला पढ़ रहा हूं। उस जमाने में गोया मेहमानों का इकराम, आज के जमाने में चाय है अल्लाह बचाए, उस जमाने में दूध पिलाते थे। आजकल दूध भी मिलावट से है ना, नाराज ना होना, ये पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम का जुमला मैंने नकल किया, चाय अल्लाह बचाए। ये ना हो कि भाई जमाल और बाकी मेरे पश्तून भाई मेरे ऊपर इतराज मौलाना तारक शुरू फरमा दे, तो मैं बड़े आदमी का जुमला नकल कर रहा हूं। तवज्जो, उस जमाने में तो खालिस दूध पिलाते थे। इमाम साहब रहमहुल्लाह ने दूध मंगवाया, एक बच्चा गोया उस जमाने का, मैं मिसाल देते हुए समझाने के लिए कह रहा हूं, जिस होटल जिस दुकान से दूध आया वो एक शागिर्द लाया, उस जमाने के जो कप थे या जो भी ज़रूफ और बर्तन थे वो सामने रख दिए, मेहमानों ने पिया। इमाम साहब ने उस बच्चे में छुपी हुई इल्मी सलाहियत का अंदाजा लगाया, कहा बेटा क्या करते हो? कहा मैं बेटा हूं फलां का। किसका? कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो फौत हुए थे कुछ दिनों पहले, वो मैं इब्राहिम का बेटा हूं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते हैं? कहा अब्बू का साया सर पे नहीं है, यतीम हूं गोया के, मैं यहाँ काम करता हूं, मुझे 1 दिरहम मिलता है 1 हफ्ते का, अम्मा को देता हूं, हमारे घर का गुजर बसर चलता है। कहा बेटा मेरे पास आ जाओ, सिर्फ पढ़ाई करोगे, काम नहीं करने को, मैं तुम्हें 2 दिरहम दूंगा, और क्या चाहिए? बच्चा आ गया, हफ्ते के बाद जाके अम्मा को 2 दिरहम। अम्मा ने कहा वाह, तनख्वाह बढ़ा दी। होटल के मालिक के पास आई, कहा थैंकफुल तेरा करने, शुक्रिया अदा करने आई हूं, मेरे बच्चे की तनख्वाह बढ़ गई। तेरा कहा बच्चा? मुल्ला जी को गया बैठे, वो तो मौलवी के पास गया हुआ है, इधर नहीं पढ़ता। वो आई और कहा इमाम अबू हनीफा को, कहा मेरा बच्चा बड़ा होगा तो गोया खाएगा कहां से, जैसे हमें कहते हैं ना, खाएगा कहां से? कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पास नहीं पढ़ाती, इधर दे, आज तू 2 दिरहम दे रहा है। पकड़ा और दोबारा वही उसी होटल पे। इमाम साहब के फिर मेहमान आए, दूध फिर आया तो बच्चा फिर देने आया, इमाम साहब ने फिर ऑफर कर दी, बच्चा 5 दिरहम हफ्ते के लेना। उन्होंने कहा कहां 1 कहां 5, बैठ गया। अगली दफा जब गया तो अम्मा को 1 हफ्ते बाद 5 दिरहम। अम्मा फिर आई, सुनो इमाम साहब रहमहुल्लाह के ज़र्फ को, कहा तू तो चला जाएगा, कब तक 5-5 दिरहम हमारे घर में देगा? मेरी औलाद का क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा? मैं इसका ब्लैक फ्यूचर नहीं चाहती, ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल चाहती हूं। तेरे साथ तो ये हो जाए, खाएगा मेरा बच्चा का, इस पर परेशान थी। तो इमाम साहब ने एक जुमला कहा अम्मा इस बच्चे को छोड़ दे, ये जो ग़िज़ाएं खाएगा इस दीन की बरकत से शायद बादशाहों को भी वो न मिले। मां चली गई। अल्लाह अकबर। इस शख्स ने पढ़ा है, समझा है, सहाबा के आसार और फतावा का इमाम अबू हनीफा से पढ़ के वो हाफिज बना है कि गोया पैगंबर के सहाबा को कोई फतवा पूछता जैसे हाफिज आयत सुना देते हैं, ये यूं पैगंबर के फतावा का, पैगंबर के सहाबा के फतावा का फतवा सुना दे। इतना बड़ा आलिम। इमाम सब दुनिया से रुखसत हो गए। बादशाह वक्त को एक ओहदे की जरूरत पड़ी, सबसे बड़ा मौलवी चाहिए जो दीनी मसाइल हल कर पाए। फलां जी नहीं, फलां जी नहीं, फलां जी नहीं। नजरें इस पे टिकी, नजरें इस पे टिकी और इसे बुलाया गया और कहा आप शरीयत के मुताबिक जो फैसला करोगे बसरो चश्म कबूल है, आप आ जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये शख्स पूरी दुनिया का काजी उल कुज़ात बना है और नाम इसका याकूब है, बाप का नाम इब्राहिम है। दुनिया इसे काजी अबू यूसुफ के नाम से जानती है। यह है काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, जो इमाम शाफी के दादा उस्ताद है। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने बहुत सा मजहब का हिस्सा इमाम अबू यूसुफ से पढ़ा है और इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के उस्ताद है। और इमाम शाफी फरमाते हैं, तारीख बगदाद में फरमाया, हफिज तो अन मोहम्मद वकरा बाईर। बाईर एक ऊंट को नहीं कहते, ऊंटों का लश्कर को कहते हैं। का ऊंटों का लश्कर
जिन किताबों को अपने पुष्प पे उठा के चले, इतनी उलूम की किताबें मैंने इमाम मोहम्मद से पढ़ी हैं तो मैं इमाम शाफी बना हूं। और इसके उस्ताद भी काजी अबू यूसुफ हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये इमाम साहब यूं मर्दम शनास आदमी है। और इमाम साहब रहमहुल्लाह दलील की दुनिया का, लोग बेताज कहते हैं, मैं कहता हूं वो बाताज बादशाह है कि एक दलील कोई देता तो उसे दूसरी की नौबत ना आती। इमाम साहब क्यों टू द पॉइंट जुमला खत्म करते, कहते हैं बादशाह वक्त ने एक मर्तबा लालच दी कि आप मेरे काजी बन जाएं। उस वक्त के काजी मातात होते थे बादशाहों के। तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस काजी बनने वाले ओहदे का लायक और अहल नहीं हूं। एक उस शख्स जिसके दिल में दीन के लिए नफरतें मौजूद हूं, दीनी शख्सियात के लिए, इस मरीज से हमारी मुलाकात हुई जिसने अभी तक अपना इलाज नहीं कराया था। तो मुझे कहने लगा कि इमाम अबू हनीफा अगर इतना बड़ा मौलवी था तो काजी बनने का हाल था, फिर उधर क्यों कहा मैं काजी बनने का हाल नहीं हूं? झूठ बोला। मैंने कहा अगर मैं कहूं कि तेरा अब्बा जाकर फलां जिना के अड्डे में जिना करे तो तेरा अब्बा करेगा? कहते नहीं वो तो बहुत नेक आदमी है। मैंने कहा करेगा? कहते मेरे अब्बा में ये काम नहीं है, वो इसके सलाहियतों का हामिल नहीं है। मैंने कहा इसका क्या माना? तेरा अब्बा झूठ बोल रहा है, उससे कोई काम नहीं हो सकता। शर्म नहीं आती इमाम साहब पे बात करते हुए? खुदा के बंदे, उस करीना हालिया को समझ, मकालिया हालिया से समझा जाता है। गुफ्तगू माहौल से क्रिएट होती है। वो माहौल था जुल्म और तशद्दुद का। बादशाह चाहता था मजमे आम में, पब्लिक में मेरी बेइज्जती होती है, लोगों का मुझ पर एतमाद खत्म है, वो लोगों का मुझ पर एतबार खत्म है। किसी बड़े आलिम दीन को अपने साथ मिलाऊं ताकि लोगों के सामने मुझे फेस सेविंग मिले, मुंह दिखाने का मौका मिले। उसने इमाम साहब को लालच दी। इमाम साहब समझ चुके थे यह लालच की बुनियाद पे मुझे साथ मिलाता है, अपने जुल्म और तशद्दुद पर पर्दा डालने के लिए मुझे अपने हेल्पिंग हैंड बनाता है। इमाम साहब ने बताया गोया जुल्म और तशद्दुद के साथी बनने का मैं आल नहीं हूं। इसे इमाम साहब की सिफत कहते हैं, इसे इमाम साहब की बुराई नहीं कहते। ये तो इमाम साहब ने अच्छा किया कि मैं जालिम का साथ नहीं देता। और मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कुछ बंदे जमा होकर इमाम साहब के पास आए, कल तुसी फतवा ठीक नहीं देते, कल आपने मसला ठीक नहीं बताया। कहां का जो हमारे मोहल्ले में गोया बयान है, मैं समझा रहा हूं मिसाल के तौर पे। क्या मसला? कल आप फरमा रहे थे इमाम कुरान पढ़ेगा मुक्तदियों की तरफ से हो जाएगा, मुक्तदी नमाज में इमाम के पीछे कुरान करीम न पढ़े। तो इमाम साहब ने कहा जी ठीक है, तो कहा है मैंने, उसी बयान में साथ दलील भी दी है कि वजह यह है कि इमाम जो है वो बड़ा है और अल्लाह के रसूल का फरमान है मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमाम लहू किरा, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी का हो जाएगा। मैंने कहा ये हदीस हमें सुनाते हैं, ये क्या मतलब? इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा तो फिर इमाम ही को अजर मिलेगा, हमें अजर क़यामत में। कहा इधर उधर हर बंदा अपनी बोली बोल रहा, मजमा इमाम साहब के दरवाजे पे। इमाम साहब ने जब सोचा ना कि यूं ये नहीं समझेंगे, क्योंकि बाज बंदों की ये जो फर्स्ट फ्लोर होती है ना, ऊपर की मंजिल खाली होती है, उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, उनकी समझदानी में बात बड़ी देर से आती है। तो इमाम साहब रहमहुल्लाह ने कहा कि यार ये 15 बंदे हो, जरा बैठो ना। उनने समझा कोई पता नहीं इज्जत एहतराम के लिए कोई खाने वाने की अलग पैकिंग है, 1 2 3 का जी 15 ही है। कहा अब तुम्हारी 15 जबानें, मेरी एक जबान, एक 15 से बात कैसे करे? मैं नहीं कर सकता। मसला बताया तो जवाब देना पड़ेगा। कहा फिर बंदे बढ़ो। कहा जी बंदे बनने का क्या माना? कहा अपने में से एक मौलवी लाओ जो सबसे तगड़ा हो और उसको इल्म पर तुम्हें नाज हो, करे वो मुझसे बात में करता हूं यूं। उनने फिर एक बंदे को कहा जी ए बड्डा मौलवी है, इसको लेके आओ, उसे लेकर आगे इससे बात करो। इमाम ने कहा कर ले बात, दे वो दलील, वो जीत गया तो तुम जीत गए। ऊपर की मंजिल वैसे खाली थी कि जी ठीक है, उन्हें नहीं पता हमारी मौत का बंदा बन रहा है। उन्होंने एक बंदे को आगे किया, 14 बंदे पीछे, हाँ जी ये आपसे बात करेगा। इमाम ने कहा मुझे तुम पर एतबार नहीं है, एतबार दिलाओ, एतबार दिलाओ, पक्की बात करो। कहा जी ये बात करेगा, हम नहीं करेंगे। कहा इसीलिए एतबार नहीं है कि तुम अपनी अपनी दलीलें देने शुरू करोगे। उन्होंने कहा हज़रत कैसी बात करते हैं, ये दलील देगा। कहा फिर तुम्हारी दलीलें? कहा जब बड़ा बनाया ये दलील देगा, हमारी तरफ से दलीलें हो जाएंगी। कहा बहस शुरू होने से पहले मैं मुनाजरा जीत गया हूं। कहा जी शुरू नहीं हुआ, जीते कैसे?
کہا تیرا بڑا دلیل دے، تم سب کی ہو جائے، امام ہمارا بڑا قرات کرے، ہم سب کی کیوں نہ ہو؟ تو میں نے کہا ایک سے دوسری بات نہیں کرنی پڑتی تھی، دوسری دلیل دینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور سنیں، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی تحقیق کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ نے جن مسائل کو قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے اتفاق سے، خلفائے راشدین کے اقوال اور فتاوی سے، اور ان کے سرکاری فیصلوں سے، خلفائے راشدین کے دور کے تمام فیصلوں کو اور یہ تمام ترتیبوں کو آیت حدیث کے سامنے رکھ کے جن مسئلوں کو نکال کے امت کو دیا ہے، ان کی تعداد 10,000 کم 13 لاکھ ہے، 12,90,000 مسائل۔ حضرت اکاڑوی کہتے ہیں جس میں نماز کی تعداد مسائل کی 70,000 ہے۔ امام صاحب پہ اعتراض کرنے والوں کو کبھی کبھی میں کہتا ہوں تم نماز کے 70 مسئلے مجھے سنا دو، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، اور تم بات اس پہ کرتے ہو جس نے صرف نماز کے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک 70,000 مسائل لکھ کے امت کو دیے ہیں۔ اور میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے بارے میں اس وقت کے جبال العلم، بڑے بڑے علمی شخصیات صرف تائید کرتے نہیں بلکہ توصیف و ثناخوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ثناخوانی کرتے، صرف تائید نہیں، ثناخوانی کرتے۔ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اٹھائیں، امام سفیان ثوری کے لیے فرماتے ہیں کان یفتی بقول ابی حنیفہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سب سے پہلا جو میں نے کتاب پڑھی ہے، وہ سب سے پہلی علمی حدیث کی کتاب وہ پڑھی ہے جس امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک نے جامع عبداللہ کا نام دے کر لکھی تھی۔ عبداللہ بن مبارک مجاہد فی سبیل اللہ اپنے دور کا، کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اللہ ادرکنی بی حنیفہ و سفیان لکنت بدعیا۔ کہا مجھے تم کہتے ہوئے بدعتی کیا حال ہے؟ کہا عبداللہ بن مبارک تجھے ایسے کہتے تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے؟ کہا جی مجھے دنیا بدعتی کہتی اگر ابو حنیفہ مجھے تربیت نہ دیتا۔ اور میرے دوستو، فضیل ابن عیاض جیسا شخص جس کے لیے یہ نظم موجود ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، یہ فضیل ابن عیاض جس کی یہ کسی دن کی رات کی اذان کے وقت ایسی نماز نہیں تھی کہ جبین نیاز کعبہ میں نہ ٹکی ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور ثناخوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید کون؟ 10 لاکھ حدیث، کتبت بیدی الف حدیث۔ آپ اٹھائیے طائف منصورہ، حوالہ الجواہر المزیہ کا، حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ 10 لاکھ حدیث جس بندے نے پیغمبر کریم کی لکھ کے امت کو دی ہے، اور وفات کے وقت کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کی نجات کے بہت بڑے بڑے خزانے ہم نے دیکھے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیانوں کا؟ جی ہاں۔ کہ میں نے اپنی اولاد کو وصیت کی جب میں فوت ہوں، اگر ان دنوں میں فوت ہوں تو میرے لیے جو پانی تھوڑا سا جوش دے کر گرم کیا جاتا ہے غسل کرانے کے لیے، تو اس میں آگ کی لکڑیاں نہ جلائی جائیں۔ میں نے خاص کمرہ جو بند کر کے بنوایا رکھوایا ہوا ہے، اس میں میری ان کلموں کا برادہ ہے جن کلموں کو کانے کی قلم کو چھیل چھیل کے میں پیغمبر کی حدیثیں لکھتا۔ 10 لاکھ حدیثیں لکھی، اتنے کانے اور اتنی کلمیں استعمال ہوئی کہ اس کے چھیل اور برادہ سے کمرہ بھر گیا۔ کیسے جلانا؟ میرے غسل کا پانی یہاں سے گرم کرنا۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں تو یہ بات ہے، لیکن اس وقت کے جو بڑے اور ہیں ان کی بات بھی کرتا جاؤں۔ امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ 13 سال اگر 80 ہجری کا قول لیں تو امام سب سے چھوٹے ہیں، آخری قول لیں، سن 93 ہجری کی پیدائش ہے۔ امام مالک ابن انس فرماتے ہیں انی رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتی۔ اے بچہ، تو جانتا ہے ابو حنیفہ کون سا علمی بادشاہ ہے؟ کہ امام مالک آپ فرما دیں
का जरा हाथ लगा, ये क्या है? का जी लकड़ी का सतून है। का फिर देख, का लकड़ी का तसल्ली का लकड़ी का है। का तेरा वास्ता अबू हनीफा से पढ़े, दलील की दुनिया का वो बादशाह है, इस लकड़ी के सतून को साबित करने लगे तो सोने का साबित कर देगा। तुम जानते हो अबू हनीफा कौन? तो इमाम मालिक के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह की खिदमत में आइए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते इमाम अबू हनीफा कौन? का इमाम अबू हनीफा मन अराद अन यअरिफल फिक़्ह फलयल्ज़म अबा हनीफा व सहाबहु फ़इन्नन नास कुल्लुहुम अयालुन अलैहि। का मैंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की बातें सुनी, देखी, बताई, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा, उलूम में, शरीयत में, दीन और इस्लाम और मजहब में अगर अबू हनीफा को इल्मी अब्बा मानोगे, औलाद बन के चलोगे, तो वाकई इल्मी खिदमत सर अंजाम दो। अयालुन अलैहि, अब्बा मानना पड़ेगा इमाम अबू हनीफा को। और मेरे दोस्तों, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह का हुआ मिनल इल्मी व ज़ुहद वल वरअ व तक़वा व इतार दारिल आखिरा बिमहल्लिन ला युद्रिकु मिम्मन अहदुम बअदहु। का आज तक मैंने जितने बंदे बात में मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन देखे, कोई एक ऐसा नहीं है जो अबू हनीफा के तक़वा तहारत लिल्लाहियत में उसका मुकाबला कर सके। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा तो वो है। और सुने, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह के लिए आप तानीबुल खुतैब उठाइए। इमाम कौसरी रहमतुल्लाह ने जो बातें उसमें अपनी तरतीब पे लिखी है, उसमें एक बात यह भी है कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह जैसा शख्स फरमाते, जब मेरे ऊपर कभी मुश्किल आती तो मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कब्र की ज़ियारत पे जाता और उसे ईसाल सवाब करता और वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता, रब मेरी मुश्किल आसान कर देते। और इमाम अबू हनीफा की कब्र के पास जो मस्जिद है, उसमें जब नमाज पढ़ते तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह रफ़ुल यदैन को सुन्नत नबवी समझते हैं, वहां बगैर रफ़ुल यदैन कर नमाज पढ़ते। रफ़ यदैन वहां नमाज के अंदर वाला न करते। कहा क्यों? कहा मुझे इस कब्र वाले से हया आती है। मैंने कहा सुनो, इमाम शाफी उम्मत का तीसरा बड़ा इमाम उम्मत के लोगों को सबक दे रहा है। ए लोगों, अगर कभी मुश्किल आए अपने अकाबिर को ईसाल सवाब करो। इमाम शाफी बता रहा है, अब ईसाल सवाब में फौत शुदा बंदे का वसीला अल्लाह के दरबार में पेश करो, अल्लाह मुश्किल खत्म कर देते हैं। इमाम शाफी बता रहा है, रफ़ुल यदैन पे मत लड़ना, मैं रफ़ुल यदैन को सुन्नत समझता हूं, लेकिन अबू हनीफा के इल्म की कदर, सलाहियत की कदर, तकवे की कदर, लिल्लाहियत की कदर, शख्सियत की कदर इतनी करता हूं, अब नमाज में रफ़ुल यदैन भी नहीं करता। इमाम शाफी उम्मत को बता रहा है, और उम्मत के लोगों ये बात याद रखना, कब्रें जमीन पर होती है, आसमान पे कब्रें नहीं होती, ताकि मैं इसी बुनियाद पे अबू हनीफा की इसी कब्र पे हाजिर होता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह बता रहे हैं, सुनो, मैं अबू हनीफा का इल्मी कदर इतनी करता हूं, इल्मी तौर पे इतना कदरदान हूं कि अपनी दलील को इस बड़े बुजुर्ग की लिल्लाहियत की वजह से छोड़ देता हूं। यह है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिसके मनाकिब पर मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप सबको कहूंगा, सिर्फ सुन के उठ जाना ये कोई काम नहीं। यूं उम्मत में इंट्रोडक्शन कराने के लिए मुनासिब है कि आपको जब गुफ्तगू अच्छी लगे तो उसके हेड्स नोट करें, नोट करके जहन में बिठाएं और आगे बताएं। दलील की दुनिया के मिसाइल बन जाओगे, दलील की दुनिया के एटम बम बन जाओगे, लेकिन तब जब आप इस पर मेहनत करें, वरना पिदरम सुल्तान बूद से काम नहीं बनता, यूं काम नहीं बनता। ये इज्तिमा, यहां बुलाने की वजह, यहां आने के मामलात में कई वजूहात में एक वजह यह भी है कि जो हमने सुना है इसको समझ के आगे फैलाने वाले बने। आप लोग बनोगे? जितने बंदे बैठे हो हाथ खड़ा करके आप तायद करें। आप लोग दलील की दुनिया में आगे काम फैलाओगे, बताओगे, अपने इलाके में पहुंचाओगे,
اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے، یہاں سے آپ کل اٹھیں گے اور اٹھ کر آگے جائیں گے، جہاں جہاں تک آپ جائیں، جس گاڑی میں جائیں، جس بس میں جائیں، جس ٹرمینل پہ رکے، جس محلے ٹاؤن میں رہیں، آپ دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔